मर्दडेरवर पोडाजी लगे तलेदार सखी की गंत सुधकी अरमानी कड़ादाय मर्दडेरवर दडेरवर तब सवार को मर्दडेरवर पोडाजी लगे तलेदा वही दखिल अंदर तब सलाम अलैकुम सर चलिए सर और सर कैसा लगा ये आपको घुसनिया? अभी कहाँ लगा यार, अभी तो लगेगा, अभी देखेंगे क्या है। और तुम लोग सुनो, तुम लोग अचानक लेफ्ट हैंड ड्राइव से राइट हैंड ड्राइव जाना कैसा लगा? सर बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, कई दफा तो ऐसा लगता है कि सामने वाला ट्रक हमारे सर पर ही आ जाएगा। कल तो डर के मारे मैंने कश्मीर में उतार लिया था। I'm sorry, I didn't know you were also sitting here. Hello, I'm Elena. I'm Captain Golsher. Oh, I know that. How come? Oh, I know everything. Should I tell you? Please go ahead. Well, you're Captain Golsher. Yes. You got married a few months back. Your wife is very pretty. And your mother tongue is push-tot. And you are Sharif Admi. What did you say? Sharif Admi. How did you learn all this? Oh, why don't you guess? Captain Shahid? Yes. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Sine te pita hoće uzeti ove stvari i nam da predam, nemam šta da jedem. What is she saying? She's selling some things. You know, nowadays people don't have anything to eat, so they bring things from their homes and sell. Pokaži mi što imaš. Šta kad se kratca, sama živim, sin je poginu, nemam niđe nikog, samo njega što sam imala, nikog živa nemam više. Pa mora se neko izhraniti i da se... She's saying that she lives alone. Insan preživi i da preživi. She has no one now and she has Problemi su. to sell these things to earn something. Nema neko drugi hranit vam ja, evo da isprodajem iz kuće. She's selling things. Ne znam više šta da radim posla kad bude. Niti posla, niti nikog živa. Nema. Samo ja i jedini dragi Allah što eto ima, nikog više. Only myself and Allah. Would you like to buy something? Okay. Ask her how much for this. Kako ti je ovo, Nana? Evo sine, daćemo ovo sve za 20 maraka, samo da se izhrani. She would give you the whole basket for 20 Deutschmarks. 20 Deutschmarks. 20 400. Are you sure? Yes. Let's go. Stante, pa niste uzeli one stvari. What is she saying? She's saying that you forgot to take the things. Keep it. Ask her to keep it. Sačuvaj i pavaj stvari, rekao ti je. Ne dolazi u obzir. She won't take it. But she's just like my grandmother. I can't buy her things. But you have to. Okay. Please ask her address. And Koja vam je adresa? Trumić Munira, selo Živčići, zadnja pošta Đurđevik. Selo Živčići. You know, today is the marriage anniversary of my parents. that's very nice. That's why I requested Lieutenant Jari to send me to Tuzla with you.
My house is very near. I'm taking you there. But No arguments. Please, come. This is my sister Melita. And this is my mother. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Yes. How do you say thank you in Bosnian? Hvala. 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 Molim. Isti moj Mihat. She's saying you look like my brother. Really? Do you have a photograph of his? Yes. Yes, фотограф. Донес фотографию ми ходи. You're right. He really looks like me. Where is he now? In the heavens. He was killed last year. I'm sorry. No. I'm sorry. And where's your father? He's in the VIH army on the front line. That's why he couldn't come now. You must be missing him quite a lot. Oh, very much. He's my idol. Excuse me, I should see my mother. Proljeće je sada, a mene obuze sjeta. Sad ti pišem pismo stari, prijatelju moj. Daj mi reci šta ima novo, sve mi reci što znaš. I da li još svirate noću pored rijeke, sad je došlo lijepo vrijeme, pjevate li one naše pjesme i da ponekad sretneš moju dragu, jel još uvijek onako lijepa, pita li za mene i da me čeka, piši mi sve. Jutrom kad se budim često. Please tell your mother I'm sorry I didn't give her any present. Kaže da ti nije donio nikakav poklon, pa mu je žao. Meni je drago da je on nama došao, a poklon može donijeti drugi put iz Pakistana. She says that she's so happy that you came and you can bring her a present from Pakistan later. Definitely I will. What will you do now? Well, we shall sit in the house till late night, drink coffee and talk. Right, okay then I'll see you tomorrow. Okay, Khuda Hafiz. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz. Allah imanet ya. Allah imanet. What did she say? Allah imanet. Oh, good. Allah imanet. Allah imanet. जनाब कैप्टन साहब। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है 4 टेलीफोनों के बाद आए हो। अब मैंने फोन भी नहीं करना था। आओ उधर बैठते हैं। गुलशेर का फोन आया था? हाँ आया था, लेकिन थोड़ी सी बात हुई थी, बीच में लाइन ही कट गई थी।
और तुम सुनाओ, तुम्हारा क्या हाल है? सभी डिप्रेशन में हूँ। एक तो ये कि दोनों के जाने से अकेला रह गया हूँ। तो सख्त चलन हो रही है उनसे। जलन हो रही है? वो क्यों? भाई दोनों ऐसी जगहों पे गए हैं कि जहां जाके कुछ करके दिखा सकते हैं, और मैं रूटीन के कामों में लगा हूँ। फराज, तुम्हारे मुंह से ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम तो बना बनाया हीरो मटेरियल हो। अल्लाह ने तुम्हें इतना टैलेंट और इतनी सारी रिसोर्सेज दी हैं कि तुम तो मिरेकल्स परफॉर्म कर सकते हो। I fail to understand कि एडजुटेंट की चेयर पे बैठ के मैं कौन से मिरेकल्स परफॉर्म कर सकता हूँ। ये तुम फौजी बन के सोच रहे हो। क्या मतलब? कोई फौजी ही तो हूँ। बिल्कुल गलत। फराज, तुम इंसान पहले और फौजी बाद में हो। हीरो बनने के लिए बहुत सी सियाचिन जाना जरूरी तो नहीं है ना, और ना ही हीरो बनने के लिए किसी खास लड़की से शादी करना जरूरी है। वैसे आई मस्ट एडमिट, मेरी और गुलशेर की शादी में तो तुमने बिल्कुल फिल्मी हीरो वाला रोल अदा किया है, जो और कोई नहीं कर सकता था। छोड़ो मालूम। अच्छा ये बताओ कि अगर तुम्हारे पास मेरे जितने रिसोर्सेज हों तो तुम उन्हें किधर यूटिलाइज करोगी? सॉरी, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा मकसद तुम्हें उंगली पकड़ के चलाना नहीं है, और वैसे भी तुम्हारे जैसे ब्रिलियंट आदमी को इसकी जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम सोचना शुरू करो कि अपनी इतनी सारी दौलत और जहानत के साथ तुम ऐसा क्या कर सकते हो जिससे तुम हीरो बन जाओ। इस वक्त मुझे बिल्कुल पीएमए की एक इंस्ट्रक्टर लग रही हो जो मुझे प्रोजेक्ट दे रहा है। सर, ये प्रोजेक्ट जमा कब कराना है? Yesterday. That urgent. मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। I'm sure. अच्छा बाय द वे, मैंने काशिफ और गुलशेर के लिए बड़े जबरदस्त कार्ड्स किए हैं। अच्छा, मैं भी भेजूंगी। Weil Sie mir sagen, was Anouk am Freitag? Ja, klar. So. Was sind die Dinge? Wenn ihr. वो सर चैनल तो नहीं किसी चैनल पर आपसे। इस वक्त जहां मैं सीनियर मोस्ट हूँ और जो मैं देखूंगा वो सब देखेंगे। तो फिर आप बड़ी प्यारी बात की है तुमने, बड़ी बात है इसमें। वो किधर यार, तो तू सुबह से नजर नहीं आया। और कहीं नहीं यार, रात को नींद भी बुरी नहीं हुई। सुबह से आके ऐसा सोया था कि अभी हम किधर सीओ नजर नहीं आ रहे। सीओ स्प्लिट गेम में वो कल आए। टूएसी का जरूरी टेलीफोन आना है। मेरे न्याजी का पेट खराब है इसलिए वो डिनर नहीं करेगी, और मैं यहाँ सीनियर मोस्ट हूँ। सर बड़ी गलत फहमी है आपकी। गो के मेरे न्याजी का पेट खराब है लेकिन आंखें ठीक है, और जब से उन्होंने मेस में रोस्ट बनता देख लिया है वो डिनर की फुल तैयारी में है। बेड़ा गर्क यार, कुछ खुराक तो खैर वो हमेशा से है, लेकिन जब से उन्हें ये पता चला है कि इधर मेस में बिल नहीं देना, तवा मेरी या अल्लाह, बुत्रस गाली को फिक्र पड़ गई है राशन की। सर वैसे आपस की बात है सर, भूख तो मुझे भी लग गई है। अच्छा चलो बोलो, अपने बड़े बनता तैयार कर लो, तैयार जाओ मेरे नाम। Assalamualaikum. Sit, please. You know, this is the best thing about Pakistanis. They really respect women. And what in your opinion is the worst thing about Pakistanis? You know, it is the way they look at us. Sometimes I think you don't have women in Pakistan. But Captain Javed was the best thing happened to me. You know, when he came to know that I lost both of my brothers, he came to me and said, Mirha, you know, I was the only child of my parents, and I've always wanted to have a sister. Would you like to be my sister? I was so happy. Now, no more talking, just eating. Okay? Okay.
And let me ask you one thing. In your house, who cooks food? You or your wife? Wife? Yeah? No, wife. Okay. You know, out of all the houses around, I'm the only one who's not married. And you know what? Out of all the girls here, I'm the only one who is married. Give me a break. At this young age, you cannot possibly be married. And at this old age, you can't possibly be unmarried. But I'm young. You know, I just lost few here. Few here. I see. Sir, Pindi sir, आपको telephone. I think you didn't believe what I said. Of course, I believe. सर खौफ खुदा भी कोई चीज होती है। हमारी बीवियां अभी तक पैदा नहीं हुई और आपने उन्हें शादीशुदा बना दी है। और आपके हमारे हमारे जितने बच्चे जो सियालकोट में रुलते फिर रहे हैं वो और आप What are you talking about? Nothing. I was just telling Major Niazi that instead of discussing other things, he should discuss about Boston music with you. Boston music? Would you like to hear a Boston song? Oh, sure. Mirha, come here. Hoće da plavamo jednu pjesmu na bosansku. Koju čuju? Ocelane. Ocelane ćemo, šta ćemo? Tako počnemo. और सुना तुझला कैसा लगा? बड़ी अच्छी जगह है यार। मौस्तार की दवाई देखने के बाद एक बड़ी सी चेंज थी। एक ऐसा शहर जो कि अभी तक सही सलामत है। लोग भी बड़े खुश थे। वो वलीदा की अम्मी और बहन से मुलाकात हुई है। यार ये लोग पाकिस्तानी को बहुत पसंद करते हैं। Će mi život bez tebe, dragi, kad drugu ljubav ne želim da imam. Sanjam te, sanjam skoro svake noći, samo si ti u srcu mom. Sanjam te, sanjam skoro svake noći, samo si ti u srcu mom. Cure, nešto ti kažem 10 grana, ti već piješ da odvede njena mama i sad se spavila. Prije, Bože, dragi, šta je ovo? Čekaj, Ilma! Mirha! ख्याल है यार कोई गड़बड़ हो गई है। क्या है यार, हर दूसरे दिन को बुरी खबर सुनने को मिलती है। ठहरे मैं चेक करता हूँ। यार बहुत बुरी खबर है। तो शहर में बमबारी हुई है, कोई 71 के नजदीक बंदे मारे गए हैं और कोई 250 के नजदीक जख्मी हैं। ओह माय गॉड। और इससे बुरी खबर यह है कि अपनी वलीदा, उसकी अम्मी और उसकी बहनें भी फौत हो गई हैं। But Shahid, come on, hurry up. खैरियत है? सर, मैं वापस पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। बस सर मैं यहाँ नहीं रह सकता। मसला क्या है? मसला है सर कि मुझसे ख्याल बर्दाश्त नहीं होता कि आज से 10-20 साल बाद मैं अपने बच्चों से ये बात कैसे छुपाऊंगा कि जब बोस्टन में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था, मैं उस टाइम वहीं पे था। मेरे पास बख्तरबंद गाड़ियां भी थी और जवान भी, मेरे पास राइफलें भी थी और उनमें गोलियां भी थी। तुम जज्बाती हो रहे हो। दरअसल सर प्लीज मुझे कोई मोटिवेशनल स्पीच मत दें। मैंने फैसला कर लिया है एंड आई हैव टू गो बैक। अफजल, अफजल, प्रॉब्लम सर। अफजल बड़ी सख्त प्यास लग रही है यार, अगर पानी है तो इसके अंदर कोई मीठा शीठा घोल के पिलाओ यार। वो ये क्या कर रहे हैं? सर पानी तो खत्म है, बर्फ को पिघलने के लिए चूल्हे पर चढ़ा कर आया हूँ।
It has often been noted that those women in the shadow of death. बस यार बस लल्लू बस कर. Right, sir. यार अफजल तेरी जो साइंस है ना ये मेरी समझ में नहीं आती, कोई बखरे टाइप की है यार. वाह लले, बचपन के बोले याद आ गए. सही बात. शुक्र है इसमें उन्होंने कोई मीठा मीठा डाल दिया, वरना खाली बर्फ तो बहुत मजा होती है यार. पुरानी होने की वजह से सर पत्नी कब से पड़ी हुई है. आए सर ताश हो जाए. हो जाए, लेकिन कोई ना कोई शर्त होगी. सॉरी सर, मैं जुआ नहीं खेलता. और खुदा के बंदे, मैं तुझे ज्वारी नजर आता हूँ शक्ल से. शर्त से नाराज है, किसी और किस्म की शर्त. अच्छा. यानी अगर तू हार गया तो तू जबरदस्त किस्म का आगा बनाएगा जो तू बनाता होता है. ठीक है सर. अगर आप हार गए तो? अगर मैं हार गया तो ठीक है, तुम लोग हलवा खाना, मैं तुम्हारी शक्लें देखूंगा. ठीक है सर. आ जा फिर खेलें. सर एक बात तो बता, ब्रिगेड वालों को कहकर इस ईद पर एक जिंदा बकरा मंगवाएं, यहाँ पर खुद ही ज़िबा करेंगे, बड़ा शोगल होगा. आइडिया तेरा बड़ा जबरदस्त है. चल देख, कोशिश करते हैं क्या होता है. हेलो 3/2 मिसेस यार, 3/2 10 दिन से हम इंतजार कर रहे हैं, डाक क्यों नहीं बेच रहे? और क्या करें भाई, रवाना कैसे करते? मौसम तो ठीक नहीं है. आज इंशाल्लाह पार्टी निकलेगी, परसों तक आपको मिल जाएगी. मौसम मौसम करते रहते, मौसम छोड़ दो, डाक बेच दो. और यार मौसम का नाम मत बदनाम करो. मौसम तो यहाँ महीने में 36 दिन खराब रहता है. वैसे कहें कि आपके बंदे जो है ना वो हराम खोरी पे उतरे हुए हैं. आप तो हेडक्वार्टर में आराम से बैठे हुए हैं, हीटर टीवी लगा के नूरजहां के गाने सुन रहे हैं. हमें घर वालों के खत नहीं मिलेंगे तो हम यहाँ छलकना जाएंगे. हेलो बात सुने, डाक है किधर? ये मेरे पास रखी हुई है. हेलो भाई जान, बात सुने, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ. जो आपके पास डाक है, इस डाक में लाज नाइक नूर वली के खत देखें, इसको निकालें, कहाँ पर पड़े मुझे बताएं. आप बोल कौन रहे हैं? ओहो भाई जान, मैं लाज नाइक नूर वली बकलम खुद बोल रहा हूँ. हाँ जी, ये खाता है, ये क्या करना है? हाले भाई जान बात सुनी, इस खत को ऊपर देखें, लिखाई मर्दाना या जनाना है. मैंने वायरलेस ऑपरेटर का कोर्स किया हुआ है, हैंडराइटिंग पढ़ने का नहीं. हेलो 3/2, आप इतना चूचने हैं कि रेटिंग नहीं पढ़ सकते हो. 2-3 मुबारक हो. लगता है लिफाफे पर लिखाई कुरैशिया से की हुई है. थैंक यू, बड़ी बड़ी मेहरबानी, खुश रहो. नूरवली काशिफ साहब की बात करो, जरा होल्ड करें, कैप्टन काशिफ साहब बात करेगा. यार कैप्टन आमिर क्यूम साहब से बात कराओ. आमिर क्यूम साहब कमांडर साहब के पास गए हुए हैं. अच्छा ठीक है, तुम मेरी बात गौर से सुनो. आमिर क्यूम साहब आए तो उनसे कहना कैप्टन काशिफ साहब का फोन आया था. वो कह रहे थे कि उन्होंने अपने जवानों से वादा किया है एक जिंदा बकरा हमें ऊपर पोस्ट पे पहुंचाएं हेलीकॉप्टर के जरिए. हाँ, ऊपर हम खुद ले आएंगे. सर आप फिक्र न करें, मैं अभी मैसेज देता हूँ. हेलो 3/2 आउट.
और यार नूर वली, कोई 150 दफा तू पढ़ चुके हैं ये खत। और आप छोड़ दो यार इसका पीछा। तुमको क्या तकलीफ है मैं 300 दफा पढ़ लूं या 150 दफा पढ़ लूं? मेरे माँ के तेर का खत है, आपको महबूबा का नहीं। आपको क्यों पढ़ने पड़ रहा है? बशीर, मुझे तुम पे बहुत फख्र भी हो रहा है और मैं तुमसे सख्त नाराज भी हूँ। खुश इसलिए हूँ कि तुमने यहाँ के मुसलमानों पे होने वाले जुल्म को इतनी शिद्दत से महसूस किया, और नाराज इसलिए कि पाकिस्तान वापस जाने की बात करके तुमने ये इंप्रेशन दिया है कि तुम्हारे अलावा बाकी हम सब लोग बिल्कुल बेहिस हैं। नहीं सर, मेरा तो ये मतलब नहीं है सर। आई नो, लेकिन तुम खुद बताओ कि अगर तुम इस बेसिस के ऊपर पाकिस्तान वापस चले जाते हो तो मेरे और दूसरे फौजियों के पास इधर रहने के लिए क्या जवाब है? जवाब है, और बहुत स्ट्रांग जवाब है, कि जो दर्द तुम्हारे हमारे दिलों में इन मुसलमानों के लिए है, अगर आज हम वो दर्द लेकर वापस पाकिस्तान चले जाते हैं, कल इस जगह पे मोस्ट प्रोबेबली किसी ऐसे मुल्क की फौज आ जाएगी जिनके दिल इस दर्द से बिल्कुल खाली होंगे। इस इलाके की सड़कों पर यूएन की हजारों गाड़ियां घूमती फिरती हैं। क्या वजह है कि बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें सिर्फ पाकिस्तानी फौजियों को देखकर हाथ हिलाते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि इस इलाके में वो बिल्कुल महफूज है। वो भूखे नहीं रहेंगे, उनके जख्मी जो है बगैर इलाज के मरेंगे नहीं। और सर्बियों को भी पता है कि अगर उन्होंने हमारे जुरिस्डिक्शन में कोई गड़बड़ की तो पाकिस्तानी फौज दूसरों की तरह अपने हथियार प्लेट में रख के उन्हें पेश नहीं करेगी। तुमने तो वापस आने की बात की है ना। बहुत सारे ऑफिसर तो यहां तक कहते हैं कि हमें अपने हथियार बीएच को दे देने चाहिए। दे सकते हैं, लेकिन होगा क्या? 3000 राइफलों से बीएच जंग तो नहीं जीत सकती। लेकिन होगा क्या कि अगले ही दिन यूएन के जहाजों में हमारी वापसी हो रही होगी। बोस्निया के मुसलमान इस वक्त सख्त मुश्किल में है, और इस मुश्किल वक्त में कमजोर ही सही, लेकिन हम एक सहारा है। क्या तुम चाहते हो कि उनसे ये सहारा भी छिन जाए? चॉइस इज योर्स। तू यहाँ पे रश बढ़ता जा रहा है, तो बंदे भेजो और गाड़ियाँ भी। ओवर। यहाँ हालात बहुत खराब हैं और गाड़ियाँ भेजो। ओवर। तू यहाँ तक अभी 15,000 बंदे आ चुके हैं। कैन यू अंडरस्टैंड? ओवर। अस्सलाम वालेकुम। How are you? Neće, samo za jedno. Samo jedan. Nemoj tu, prođe. Kenču. अपनी तरफ वालेकुम। आओ बैठो बैठो। दीप, यार मैं वाले को बताओ चाय लाए। वेल जेंटलमैन, कैसे आना हुआ है? मैंने बुलाया? आपको गलतफहमी हुई है। आप में से कोई एक शक्ल भी ऐसी नहीं कि मैं खुद बुला के सामने बैठा के देखूं। चले आप जाती कर रहे हैं, चले हम दोनों की तो खैर है सर, बट इस बात को दिल पे ले लेंगे। ये अपनी शक्ल के सिलसिले में बहुत अच्छी है सर, बट सारी होते हैं। बकवास नहीं करो, बट बहुत अच्छे होते हैं। सिर्फ तुम ही बटों के नाम पे बटाओ। अच्छा भी मजाक के साइड, मैंने दरअसल आप लोगों को इधर एक खास वजह से बुलाया है। सीयू को 2 लेटर्स मिले हैं, एक तुजला के मेयर की तरफ से और दूसरा जो है वो बीएच के कमांडर की तरफ से। और उन दोनों में आप लोगों की बहुत तारीफ की गई है, खासतौर पे डॉक्टर्स की। और इसके बाद मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ उन्हें भी मुबारक देने के लिए। सो सीयू इज वेरी हैप्पी एंड सो एम आई। थैंक यू सर। अब पता चला वो जो आप लोगों को फ्रस्ट्रेशन थी कि अगर हम बीएच आर्मी की तरफ से लड़ाई नहीं कर सकते तो आई क्यों है। ये है वो तमाम काम जो हम उनके लिए कर सकते हैं। 4 and 3, see?
1, 2, 3, 4. Yeah. Come on, quick. 6, 1. Hello, Major Niazi, I have a good news for you. I found a girl for you. Very nice girl. A girl? But why? You should get married. You're already late. Come on, I'm just kidding. I'm already married with 2 wives. 2 wives? Yes, and 11 children. 11 children? You must be joking. No, I'm not. Ask him. 11 children? How can he afford them? Oh yes, he can, because he is a very big landlord. Even then, 11 children. For God's sake. Muškarci, odvratni, niste normalni. I just cannot believe this. वो आपकी मर्जी है सर, लेकिन मेरा काम तो सिर्फ रिपोर्ट करना है। क्या आपको पता है इससे इन लोगों का कैरियर खराब हो जाएगा? होना भी चाहिए सर, अगर वो इस काबिल हैं तो। और लेकिन ब्रदर ये ऐसे नहीं है। आप उन्हें सिर्फ 1 महीना पहले मिले हो और हम उन्हें सालों से जानते हैं। ठीक है सर, लेकिन वो पाकिस्तान था। असल में आप चीजों को मेरी नजर से नहीं देख रहे हैं। और भाई यही तो हम भी कह रहे हैं कि आपकी नजर जो है वो धोखा भी खा सकती है। नहीं सर, मैं अपनी नजर को धोखा खाने नहीं देता, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी नजर का धोखा, जरा सा भी धोखा किसी की जिंदगी खराब कर सकता है। अगर मुझे धोखा होना होता तो सबसे पहले मेजर नियाजी के बारे में होता, लेकिन मुझे पता है कि उनकी आदत है मजाक करने की। He does not mean anything. अगर मुझे धोखा होना होता तो कैप्टन जावेद के बारे में होता, जो उस लड़की मेहरा के बहुत क्लोज है, लेकिन मुझे पता है कि असल बात क्या है, इसीलिए इस रिपोर्ट में उन लोगों का जिक्र तक नहीं। जमाल, good enough. I think we must look into this. सो गनूकूफ के पास उन्होंने कानवाई रोक ली है। हमें 100 आदमियों का खाना भेजना पड़ेगा, बल्कि शायद नाश्ता भी भेजना पड़े। मुझे लगता है वो दोपहर से पहले कानवाई को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो बस अरेंज करो। राइट सर। राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। Can we come in, sir? Hey, anybody like to have tea or coffee? No, thank you. Just had. Okay, I have called you here for a purpose. And I'm afraid it may not be very pleasant. Don't worry. We are quite used to such situations now. As you know, that CEO, he has issued certain orders. And I understand that as a civilian, you may not take them as orders. But I would also appreciate if you kindly understand them and cooperate in this regard. As you know that we are coming from a cultural and social background where men and women, they do not mix that liberally the way you do. I'm afraid that this difference may create certain imbalances amongst our own youngsters. But so far we haven't experienced anything bad. In fact, they give us enough respect. Okay, I understand. But we do believe in strong defense. And in order to avoid any unpleasantness in future, you have to take certain preventive measures. The CEO has ordered that you will not wear skirts in future. You will have a separate dining hall, and I will try to get you separate TV and VCR for your container. Is it okay? In other words, we can't enter the officers' mess. I'm afraid, yes. So, can we leave now? Thank you.
I can't take it like that. I'm going to leave. You too. Don't be ridiculous. There's war outside. No jobs are waiting for us. That doesn't mean that they can use it as our weakness. I think that we have come here to work, not to change our lifestyles. They also come here to work, not to change their lifestyles. Okay, nobody's asking them to. If someone has to change, they should. Why should we change? Come on, Alma. You're exaggerating it. They don't want us to wear skirts. We will wear jeans. They don't want us to be in officer's mess. We will eat here. We can watch TV here. It's not a big deal. Maybe not for you, but for me it is. Okay, then leave it. You know I can't. रानी, रानी, मैं अच्छा हूँ। तुम कैसी हो? घर में सब खैरियत है? पैसे वक्त पे मिल जाते हैं? देखो, जाड़ा आने को है। लापरवाही मत करना। ऊनी मोजे और मोटा सा स्वेटर पहने रखना। पढ़ने की और खुश रहने की कोशिश करना। ताहम जब सारा काजल बह जाए, बस दुख आंखों में रह जाए, तो लिख देना, कुछ भी हो मैं लौट आऊंगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। सर वो पता नहीं कब आंख लग गई। आप कब आए सर? बस अभी आया हूं यार। खाना लाऊं सर? नहीं नहीं, खाने को रहने दो। मैं असल में तुमसे थोड़ा शर्मिंदा हूं। तुम्हारी छोटी सी चोरी की है मैंने। मैं समझा नहीं सर। ये रानी कौन है? रानी सर, अगर तुम बताने नहीं चाहते तो ठीक है। मैं बहुत गुनहगार आदमी हूँ सर। बस? मेरे अब्बा भी फौज में थे सर, नायब सूबेदार। 71 में चट्टागान में मुक्ति बानी वालों ने कत्ल कर दिया था सर। तब मैं 3 साल का था। मेरी माँ मुझे मामू के घर ले गई और फिर हम वहीं रहने लग गए। मामू के 3 बच्चे थे सर, उन्हीं में एक रानी भी थी सर। अच्छा फिर? फिर सर बड़ी फिल्मी सी बात है सर, मुझे वो अच्छी लगने लग गई सर, और उसे शायद मैं। सर जब मैंने मैट्रिक किया सर, तो अम्मी से कहा कि मामू से बात करें। तो अम्मी ने कहा कि आइंदा कभी उसका नाम भी ना लेना। क्यों? सर वो मामू ने उसका निकाह कुरान शरीफ से कर दिया था सर। तो फिर क्या हुआ? हम दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें सर। मेरा उस घर में रहना काफी मुश्किल हो गया था। फौज में वैसे भी मैंने आना ही था सर। तो मैंने कहा गोली मारो अफसरी को और ऐसे ही चलते हैं सर। बस मैं आ गया सर।
और 6 साल हो गए सर मैं घर नहीं गया उसके बाद। तो तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? सर कैसे कर लूं सर, वो भी तो नहीं करते। खर्चा लिखते हो उसे? नहीं सर, सिर्फ नज़्में वगैरह लिखता हूँ सर, क्योंकि चलते वक्त कसम दी थी सर उसने कि जब भी कोई शेर लिखूंगा तो उसे जरूर भेजूंगा सर। तुम क्या समझते हो, भूल सकोगे उसे? नहीं सर, इसीलिए तो सर गुनाहगार कह रहा हूँ अपने आप को सर। ट्रेंचेस तो सामने नजर आ रही हैं क्लियर। फील्ड ऑफ फायर भी बिल्कुल ठीक है, प्राइमरी आर्क भी कवर कर रहा है, नेचुरल कवर भी अवेलेबल है। याकूब ये जगह ठीक है, इसे इधर ही साइड कर लो वेपन को। सर कोई लेडीज आ रही है? Captain Gulsher. Yes? I'm Sandra. Hello. Major Jamal.